Okay, a very good morning to everyone. So let's start our class. We have already seen accessibility options, which was our session number one. And what all things we have seen were related to some kind of options which are present in the computers that can be used by the persons who are impaired kind of, we can say, any kind of impairment if they have, like physical, mental, cognitive, so visual, auditory. So if there are such persons who are having some kind of impairment, so those persons can use the option which is present in which are explained in session number one. All right. So now we are moving towards our next session, and this next session is actually related to networking fundamentals. So in this session we will be dealing with the basic terminologies that are actually used in networking, है ना. नेटवर्किंग सुना है क्या? नेटवर्क या नेटवर्किंग क्या होता है? कोई कुछ जानता है नेटवर्क के बारे में? व्हाट इज अ नेटवर्क? किसी को कुछ पता हो? So, connection of computers. हाँ, देखो, अब नेटवर्क क्या, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, वेरी गुड. एग्जैक्टली, नेटवर्क मतलब कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ही होता है. जैसे कि हमने सुना है सोशल नेटवर्किंग. अब सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है? तो सोशल नेटवर्किंग में देयर आर मेनी नंबर ऑफ पीपल्स हु आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना. मतलब लोगों का नेटवर्क हुआ तो उसको सोशल नेटवर्क बोल दिया. ठीक. बट जहाँ पर हमने बात करी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना. मीन्स इफ देयर आर सो मैनी कंप्यूटर्स विच आर देयर एंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, they are interconnected to each other, so we can say that those all the computers are actually in a network. What is the benefit of keeping the computers in a network? So the most important benefit that we get by connecting the computers in a network is that we can share the information from one computer to the other computers which are also connected in that network. Not only the information, but also the resources which my computer has, those all resources can also be shared with the other computers which are there. For example, let us understand, I have 10 number of computers, all right, and I want to use a printer, means I want to print something, and this has to be printed each and every day from all the 10 of the computers. So first method can be like, I can connect 10 printers to each and every computer. मतलब मैं क्या करूँगा, 10 printers खरीद के लाऊंगा, मेरे 10 कंप्यूटर्स पे एक 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 प्रिंटर को कनेक्ट कर दूंगा. अब व्हाट आई विल डू, जिस कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना है तो मैं वहाँ से प्रिंट कमांड दूंगा, उस कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा. अदर थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. अब कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जब कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए. सो द थिंग दैट वी यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स आर केबल्स. By using some special kind of cables, we can connect computers to a network, and which is not at all difficult in connecting them. ऑलराइट, बहुत इजी होता है कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करना. ठीक है, एक स्पेशल टाइप की केबल होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद एक स्विच नाम का एक डिवाइस होता है, उससे उसको कनेक्ट करना होता है. तो अगर मैं 10 प्रिंटर्स ना खरीदूं और एक ही प्रिंटर खरीदूं और मेरे सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर दूं, तो उससे होगा ये कि मेरा जो एक प्रिंटर है, वो एक प्रिंटर चूंकि नेटवर्क में है, तो वो नेटवर्क में सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकता है. तो वो एक प्रिंटर ही अब सारे कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने की कैपेबिलिटी रखेगा. मीन्स आई एम नॉट रिक्वायर्ड 10 number of printers to print from each and every computer. Only a single printer can help me out in taking printouts from all the computers, and that is very easy. I just need to connect all my computers in a single network. Once the computers get connected to a network, so I can share the resources मतलब प्रिंटर, स्कैनर और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, हम वो हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं. तो बोलते हैं हम इसको कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं.
इवन वी कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन, मेरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर से शेयर करना है, सो नेटवर्किंग कैन बी द वे। मैं वहाँ पर मेल करूँगा और ज़माने की चीज़ें करूँगा, इंस्टेड अगर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में है तो वहाँ पर माई कंप्यूटर में जाके एक नेटवर्क का ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन में जाकर मैं किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे मेरी जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, एंड दैट वुड बी मच ईजी फॉर मी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू थ्रू मेल और copying it to the pen drive and again going to the computer and connecting that pen drive to that computer and copying the file, pasting the file over there. So that will be a bit a very tricky task. Instead we can connect the computers to a network, that will be very easy. Now let us see the definition which they have given us in this. All right, तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब नेटवर्क हमको पता चल गया क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। अब नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। अब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जिनको कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया कनेक्टेड यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, आइदर केबल्स और इट कैन बी सैटेलाइट। केबल्स या सैटेलाइट का यूज़ करके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, सैटेलाइट मतलब वायरलेस तरीके से। What this networking will allow, so it allow the sharing of resources and information, means we can easily share the information that we have as well as we can easily share the resources that we have in a network. All right, तो अब अगर अपन definition की simple language में बात करें तो क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, it is a collection of computers uh, where we are interconnecting the computers using cables. What will it do, it will be sharing the resources and it will be sharing the information. So for sharing the information and resources we are connecting the computers to a network. तो ये हुई एक कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर्स को नेटवर्क में हमें कनेक्ट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के वी कैन से just a minute, we can say that there are two patterns. All right, there are two patterns using which we can connect computers to a network. All right, but instead of pattern the term that we actually use is architecture, ठीक है, सुना है आर्किटेक्चर कभी? Yes, sir. आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, किसी चीज का शेप है ना, कैसा बना हुआ है, कोई चीज जैसी बनी होती है उसको हम बोलते हैं कि ये उसका आर्किटेक्चर है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के भी कुछ आर्किटेक्चर होते हैं। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है कि एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, हमेशा हमेशा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दो टाइप्स के आर्किटेक्चर जब बोले जाएं तो हमें बताने होते हैं दो टाइप्स जो अब हमें पढ़ने वाले हैं। और जब बोला जाए कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताओ तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क जब बताते हैं तब हम बताते हैं लैन, वैन, वो नेटवर्क के टाइप्स हैं। पर अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आर्किटेक्चर्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, सो यू शुड रिमेंबर दैट आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ठीक। और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो हमें लैन वैन मैन नहीं एक्सप्लेन करना है, हमें दो आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। और वो दो आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है P2P आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ऑलराइट, so we should be aware of all these architectures which are actually present in a computer network. All right, now let us get into some details of this architectures that we are going to start now. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। Yes, sir.
अब कंप्यूटर नेटवर्क के बाद अब हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मैंने क्या बोला, मीन्स इट इज द पैटर्न इन विच अ कंप्यूटर गेट्स कनेक्टेड, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ architectures that a computer generally use. The first one is P2P architecture and the second one is CSA architecture, mean client server architecture. Now let us see the very first one, which is peer to peer architecture. Let me erase this all. Okay, so peer to peer architecture, as you can see, it is written over here, peer to peer architecture. Now peer to peer architecture is the first type of architecture, means it is the first type of, we can say, the pattern in which the computer will get connected. So let us see the details. Okay, networks in which all computers have an equal status are called peer to peer network. ठीक है, अब देखो क्या बोला इन्होंने, ऐसा नेटवर्क, ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें ऑल द कंप्यूटर्स विच आर देयर इन अ नेटवर्क. ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, सॉरी इस कलर से दिखेगा नहीं, ये मेरा नेटवर्क है, यहाँ पर मैंने बना दिया, देखो ये देज आर सम कंप्यूटर्स. All these computers are in a network, so I am connecting them. All right, so I have placed all these computers in a network. Now peer to peer architecture says what? It says that if this particular computer has a permission, that it can tell all the other computers what all things they can use. मतलब यहाँ पर अगर ये वाला जो कंप्यूटर है इसके पास परमिशन है कि वो बचे हुए कंप्यूटर्स को ये बताए कि तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि तुम्हें कोई फाइल को डिलीट करने की परमिशन है, तुम्हें कोई फाइल को रीड करने की एक्सेस है, तुम्हें कोई फाइल को एडिट करने की एक्सेस है या नहीं. तो ये परमिशन अगर ये कंप्यूटर दे रहा है, फर्स्ट वाला कंप्यूटर दे रहा है, तो बचे हुए कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में हैं उन बचे हुए कंप्यूटर्स के पास भी ये फैसिलिटी होगी. मींस ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द परमिशंस टू एवरी अदर कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. है ना, मतलब सारे के सारे 4 कंप्यूटर है तो 4 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10, ऑल द 10 कंप्यूटर्स, सारे कंप्यूटर्स एक जैसी कैपेबिलिटी रखते हैं. ठीक है, सबके पास एक जैसी कैपेबिलिटी है, मतलब दे ऑल हैव व्हाट, दे ऑल हैव equal status, we can say. What do you mean by equal status? Means each and every computer is capable of performing each and everything that a computer in a network can do. है ना, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है. जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू. मतलब पहली बात तो हमने बता दी कि सारे सीपीयू, सारे कंप्यूटर्स जो है दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग विच द अदर कंप्यूटर कैन डू. ये तो पहली बात. दूसरी बात, ऑल द कंप्यूटर्स शुड हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट सीपीयू, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्पेसिफिकेशंस ये भी सिमिलर होनी चाहिए, उनकी स्पीड किसी काम को करने की. सो दैट विल बी एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिकेशंस. सो ईच एंड एवरी कंप्यूटर शुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट. तो ऐसा भी होना चाहिए, मतलब दो चीज़ों से मिलकर हमारा एक ये वाला पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बनता है. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर किससे बना, तो हम अगर डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क इन विच all the computers which are connected in a network have equal status, which means each and every computer is capable of doing the task which every other computer can do. तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. ये एक्चुअली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, तो वो लोगों को जब बहुत बड़ा एक सर्वर डेवलप करना होता है तो वहाँ पर वो अगर 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर कर एक बड़ा सा सर्वर डेवलप कर रहे हैं जहाँ से 4-5 जगह से काम किया जा सके, तो उस समय पर हमें ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है. हम लोग जो आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, उस आर्किटेक्चर का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ऑलराइट, हम लोग ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर.
लेट अस गेट इनटू डिटेल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर समझ में आ गया, सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है, सारे कंप्यूटर्स एक जैसा काम कर सकते हैं, बट क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द केस इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स। व्हाट डज दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मीन्स? लेट अस गेट networks in which certain computers have special dedicated task providing services to other computers in the network are called client server network। यहां पर हम बोल रहे हैं कि अब नेटवर्क में जो सारे कंप्यूटर्स हैं उसमें से किन्हीं कंप्यूटर को हम कुछ स्पेशल डेडिकेटेड टास्क करने की परमिशन देंगे। अभी ऊपर पीयर टू पीयर में क्या था? ऑल द कंप्यूटर्स वेर हैविंग द सेम फैसिलिटी which other computer was having, but this is not the case in client server architecture. In client server architecture only few computers are having some specific dedicated task functionality। सारे कंप्यूटर्स एक जैसे नहीं है यहाँ पर कुछ ही कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मतलब किसको क्या परमिशन देनी है, किसको क्या परमिशन नहीं देनी है, किसको हटाना है, किसको जोड़ना है, ये सारी परमिशन अब पीयर टू पीयर नेटवर्क जैसा काम नहीं है यहाँ ये परमिशन सबके पास नहीं है। यहाँ पर ये परमिशन किन के पास है? कुछ ही कंप्यूटर्स के पास। जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनमें से कुछ ही कंप्यूटर्स के पास ये स्पेशल डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। अब जिन कंप्यूटर्स के पास ऐसी स्पेशल डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्वर। एंड ऑल द अदर कंप्यूटर्स विच आर गेटिंग कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। जैसे कि हमने स्कूल में देखा है, कभी कभी होता है ना टीच नेक्स्ट हम यूज करना चाहते हैं बट टीच नेक्स्ट ओपन नहीं होता। सो व्हाट डज यू गैस? आप लोग क्या गैस कर लेते हो? यू एक्चुअली गैस दैट सर द सर्वर इज ऑफ। अब आपने बोल दिया सर्वर बंद है सर इसलिए नहीं चल रहा। अब सर्वर बंद है तो ये क्यों नहीं चल रहा? सर्वर के बंद होने से इसको क्या, हमने तो ये वाला कंप्यूटर चालू किया ना। जब हमने ये वाला कंप्यूटर चालू किया है तो ये वाला कंप्यूटर तो चलना चाहिए था। बट क्या होता है कि सर्वर ही वो मेन कंप्यूटर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जब सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर ही नहीं चल रहा तो ये जो बचे हुए कंप्यूटर्स हैं वो भी कैसे चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब कभी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं तो सर्वर का चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सर्वर ही वर्क नहीं करेगा तो क्लाइंट्स काम नहीं कर सकते। सर्वर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा तो क्लाइंट्स वर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं सर्वर, और जो सर्विसेज को एक्सेस करते हैं जैसे हमारी क्लास में लगा हुआ था कंप्यूटर तो उसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव अहेड। क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. एक बार और आप Yes, लोग sir. पढ़ना Yes. पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। आई बिलीव कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद पढ़ना है। देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो एक्चुअल में नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो नेटवर्क्स एक्चुअल में होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन, एक होता है पैन। पर इन्होंने क्या किया, हमारे को सिर्फ 2 ही टाइप के नेटवर्क्स बताए हैं। पहला बताया है लैन और दूसरा बताया है वैन। तो हम पढ़ेंगे तो यही 2, पर हमें मैन और पैन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये मैन और पैन होता क्या है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कोई ऐसा नेटवर्क जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में प्रोवाइड किया गया हो उसको बोलते हैं मैन। जैसे कि हमारे खंडवा में अगर लोकल टीवी हमारे यहाँ चलता है तो खंडवा टीवी चलता है। अब ये खंडवा टीवी कोई भोपाल में या मुंबई में थोड़ी ना चलता होगा, ये तो सिर्फ खंडवा में चल रहा है। तो ये जो नेटवर्क बनाया गया जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में ही चल रहा है तो उसको बोलते हैं मैन। जैसे कि केबल टीवी, तो वहाँ पर जो चैनल्स आ रहे हैं वो सिर्फ खंडवा स्पेसिफिक चैनल्स हैं, वो खंडवा के बाहर मुंबई में दिल्ली में नहीं चलेंगे,
वो यहीं पर चलेंगे। तो वो कैसा नेटवर्क बनाया, वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में वर्क करता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैन। पैन क्या होता है, तो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जस्ट अ मिनट, ठीक है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ व्हाट डज दिस पर्सनल एरिया नेटवर्क मींस? कभी आप लोगों ने आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट्स क्रिएट करके देखे? मोबाइल में हॉटस्पॉट Yes, क्रिएट sir. होता है, तो वो जो Yes, sir. हॉटस्पॉट क्रिएट होता है वो मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नेटवर्क बनाने की परमिशन मिली। पर्सनली मेरी इच्छा के अनुसार मेरे घर पे एक मोबाइल है जिसमें इंटरनेट नहीं चलता, और मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिसमें इंटरनेट चलता है। तो मैंने क्या किया, जिसमें इंटरनेट चलता है उससे हॉटस्पॉट क्रिएट किया, दूसरे मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर लिया। तो ये नेटवर्क मैंने बनाया एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो हम जो इस तरीके के नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, इनको बोलते हैं पैन, विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक छोटा सा नेटवर्क है, उसको मैं बोलूँगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो को तो चलो छोड़ते हैं क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, बट अगर आपको लगे पेपर में आ गया एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो आप लोगों को वो 4 बताने पड़ेंगे। मैन और पैन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमें सिलेबस में ही 2 चीज़ें दी हुई हैं। सो ओनली लैंड एंड वैन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल देयर वर 2 मोर विच वर देयर, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट अस सी व्हाट लैन इज। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, लैन वैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कोई एक ऐसा नेटवर्क जो एक छोटे से एरिया में बनाया जाए, ठीक है, विच कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, है ना। एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में जो बनाया जाता है सबसे छोटा नेटवर्क, उसको बोलते हैं लैन। जैसे कि हमारी स्कूल की लैब, या घर पे, या लैब में, या तो फिर कोई एक ऑफिस है तो इस एक ऑफिस की बिल्डिंग में, या 2 क्लोजली कनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं तो उन 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ऐसे समय पर तो कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर लैन यूज़ किया जाएगा। अगला जो टाइप होता है वो होता है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा है बड़ा नेटवर्क होता होगा, इट्स वेरी वाइड। तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जो स्टेट और कंट्री की बाउंड्रीज से भी बड़ा नेटवर्क है, मतलब इन बाउंड्रीज के भी आगे जा सकता है, काफ़ी बड़ा जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं वैन। ठीक है, मतलब मैं इधर खंडवा में बैठकर कोई अमेरिका में बैठे हुए फ्रेंड के पास भी बात कर सकता हूँ अगर उसके पास वैन कनेक्शन है ना। अब वैन कनेक्शन किसी के पास कब आता है, तो जिन लोगों के पास इंटरनेट है, मतलब वो लोग वैन से कनेक्टेड हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हाउ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर? सो वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। इंटरनेट जो है ना वो वैन का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है इंटरनेट। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग दिस फैसिलिटी, है ना। सामने वाले के पास भी अगर वो सेम फीचर है जो हम पूछ रहे हैं उनसे, तो वो सेम फीचर होगा तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि जूम, तो अभी सबके पास जूम है तो अभी सब जूम पे कनेक्टेड है। ऑलराइट, सो वैन इज एन इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क होता है विच कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एज वेल, और इतने बड़े नेटवर्क को बोला जाता है वैन। अब यहाँ पर एक और टर्म दी हुई है विच इज इंटरनेट, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है आप लोग ये पूरा जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा आप लोग एक बार पढ़ लेना, और मुझे लगता है आप लोगों को पता चल जाएगा इंटरनेट क्या होता है। वैसे भी अभी भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल वेरी वेल नो कि व्हाट इंटरनेट इज़, ठीक है। इट इज़ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू गेट फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी जानकारी चाहिए सो इंटरनेट इज़ द ऑप्शन विथ अस, गूगल पर सर्च करो काम हो जाता है। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब कुछ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमने सुना HTML, एक लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर Yes, sir. टेक्स्ट मार्कअप Yes, sir. लैंग्वेज। तो HTML का यूज कर कर कुछ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। सुनना ध्यान से, कुछ HTML लैंग्वेज का यूज करके कुछ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, और इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है वेब पेजेस, ठीक है।
ये जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इनको बोलते हैं वेब पेजेस। और ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन जो होता है, इन बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं वेबसाइट। सुना है वेबसाइट? Yes, yes. वेबसाइट कहाँ पर यूज Sir. करते हैं हम? इंटरनेट पर, है ना। अब इंटरनेट पर वेबसाइट यूज करते हैं तो वेबसाइट होती क्या है? तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं? तो वेब पेजेस आर सम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग HTML, है ना। ये कुछ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक। तो वेब पेजेस पता चल गया, वेब पेजेस के कलेक्शन से बनती है वेबसाइट। और वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं हम? वेबसाइट कोई सी ओपन करनी है तो आप क्या यूज करते हो? तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये पूरी जो एक हिरार्की है वो पता होना चाहिए कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वेब पेज बोलते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउजर्स मतलब क्या? वेब ब्राउजर्स मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है? तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? तो जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, बहुत से नाम होंगे इनमें से जो आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे पहले से। तो ये जो नाम हैं ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स के नाम हैं। इनका यूज़ करके हम वेब को ब्राउज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, लास्ट टॉपिक है ये हमको बताया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने का होता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग मतलब जितने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा। अगला है फाइल ट्रांसफ़र। मेरे कंप्यूटर पे कोई फाइल है, आई वांट दैट फाइल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम अदर कंप्यूटर विच इज़ इन अ नेटवर्क, सो दैट इज़ वेरी इजी फॉर मी। मैं इजीली वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ये हुआ दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा हार्डवेयर शेयरिंग। मेरे कंप्यूटर पे प्रिंटर है, बचे हुए 9 कंप्यूटर्स को भी प्रिंटर चाहिए, तो मैं 10 के 10 कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ दूंगा, तो मेरा प्रिंटर बचे हुए 9 प्रिंटर से भी कनेक्ट हो जाएगा। और अब वो सारे कंप्यूटर्स भी मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रिंटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली चीज़ नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि मेरे कंप्यूटर पे अगर नेटवर्क है, बचे हुए 9 कंप्यूटर्स पे मुझे इंटरनेट देना है, तो मैं अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ दूंगा तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। जैसे स्कूल में अगर हम बात करें, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे इंटरनेट चलता है, तो सब कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी ना लिया है। वो तो सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ा है, और नेटवर्क में जोड़ने का फ़ायदा है, ये एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज हमको मिला। क्या था वो एडवांटेज? कि भैया इंटरनेट एक्सेस भी शेयर किया जा सकता है अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर दें तो हाँ, हमने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया एंड वी गॉट इजीली द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, और हमें इंटरनेट एक्सेस सारे कंप्यूटर्स पे मिल गया। बस एक केबल से कनेक्ट किया था, वो केबल अगर इतनी केपेबल है, हमारे कंप्यूटर में प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो हमारे दूसरे कंप्यूटर्स में भी इंटरनेट चलने लगेगा। लास्ट जो फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं यूजेज of network based application. When we connect all the computers in a network, तो क्या होता है कि हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं नेटवर्क पे यूज़ करने वाले। जैसे कि एक होता है ईमेल क्लाइंट। अब वो ईमेल क्लाइंट क्या करता है कि जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, हम उन सारे कंप्यूटर्स पे ईमेल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ नेटवर्क में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट नहीं भी होगा ना हमारे कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो भी हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं हो तो भी। दूसरी बात, हम वॉइस चैट कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं हो पर कंप्यूटर्स नेटवर्क में हो तो वॉइस चैटिंग भी की जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है इफ़ देर इज़ अ कैपेबिलिटी इन ऑल द कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर्स पे वेब कैमरा है, माइक है, तो हम विदाउट इंटरनेट सिर्फ नेटवर्क में हमारे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर वॉइस चैटिंग, वीडियो कॉलिंग और ईमेल जैसी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुए कुछ बेनिफिट्स
एडवांटेजेस किसके, नेटवर्किंग के। यहाँ पर गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें पहली टर्म दी हुई है आईएसपी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बस ये एक टॉपिक सुन लो, 2 मिनट लगेंगे। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब अभी आप लोग आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट किसी ने तो दिया, किसी ने तो दिया उस मोबाइल में इंटरनेट। या तो इसने दिया, या तो इसने दिया, या तो इसने दिया, या तो इसने दिया, है ना। देर आर ओनली 4 ISP विच आर देयर इन एमपी। एमपी में ये 4 ही ISP हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है सेल्यूलर नेटवर्क से, तो ये 4 ऐसे लोग हैं, 4 ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रदान कर सकती है। तो ये जो कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट सर्विस हमको देती हैं, उनको हम बोलते हैं आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स इंटरनेट फैसिलिटी टू आवर कंप्यूटर्स और टू आवर मोबाइल्स, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको आईएसपी कहा जाता है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही सफिशेंट है। अभी जितना पढ़ा आज की क्लास में, क्या आप लोगों को उसमें कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ लें तो मैं उसको क्लियर आउट कर देता हूँ। नोबडी, नथिंग? सर, हाँ जी। सर मैन का फुल फॉर्म क्या है? मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं लिख देता हूँ, मेट्रोपॉलिटन सर, एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये है मैन का फुल फॉर्म, मेट्रोपॉलिटन। हाँ जी। सर P2P एक बार आप समझा दीजिए प्लीज। देखो, P2P आर्किटेक्चर क्या है? P2P आर्किटेक्चर का फुल फॉर्म होगा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर ये बोलता है कि नेटवर्क में जुड़ने वाले सारे कंप्यूटर्स की एक जैसी पोजीशन है, सबकी डिग्निटी, सबकी रेपुटेशन। जितने भी 10 कंप्यूटर्स हैं ना नेटवर्क में, उन 10 कंप्यूटर की एक जैसी रेपुटेशन है। मतलब अगर मेरा कंप्यूटर किसी यूज़र को डिलीट कर सकता है, अगर मेरा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को बोल सकता है कि तुम ये काम नहीं करोगे, अगर मेरा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को बोल सकता है कि तुम ये काम करोगे, तो बचे हुए कंप्यूटर्स जो है ना वो भी यही काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही कंप्यूटर ये सब कर सकता है। नेटवर्क में जुड़े हुए अगर सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस है, सबकी एक जैसी रेपुटेशन है, सारे कंप्यूटर्स अगर एक जैसा काम कर सकते हैं, तो उस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। सारे कंप्यूटर्स की एक जैसी क्या कहना चाहिए, डिग्निटी है, रेपुटेशन है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो मेरा कंप्यूटर काम कर सकता है वो बचे हुए 9 कंप्यूटर्स भी काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। एंड दिस इज नॉट द केस इन क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या था, एक सर्वर था और सारे क्लाइंट्स थे, तो सर्वर के पास वो स्पेशल परमिशन थी ना CSA में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। बट पीयर टू पीयर में क्या था, सबके पास एक जैसी परमिशन थी। तो ये क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबडी एल्स कुछ हो तो पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम शेयरिंग यू द PDF विच आई हैव थॉट ओवर हियर। ये PDF में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द यूनिट विच इज़ फंक्शनल इंग्लिश, एक फंक्शनल इंग्लिश जो यूनिट है हमारी, मैं उसकी एक्सरसाइजेस के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर करूंगा एज अ PDF। तो आप लोगों को वो सॉल्व कर कर आपकी कॉपी में नोट डाउन करना रहेगा, ठीक है। मैं अलग से उनको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, एक PDF बना लेता हूँ और फिर वो आपको शॉर्ट एंड सिंपल वो PDF सेंड कर दूंगा। तो वो PDFs में से वो PDF आपको कॉपी में लिखनी होगी, आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे बुक में से। मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, बुक भी शेयर कर दूंगा जिसमें से आपको देखना है, और जो कॉपी में लिखना है वो भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पर और एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमें करना क्या है। ऑलराइट, so students, this is it for today's class. See you in the next class.